Yes. Yes. Done? Very good. So it was self-assessment number. It's a concept assessment. It was concept assessment. Okay, concept assessment. Named. Next. Concept assessment 4.2. Yeah, 4.2. Yeah, so here we have done our concept assessment of 4.2, in which we have to just identify the group number or period number of the elements given according to their electronic configuration. So on the basis of electronic configuration, how can we give the period number and group number? Simply, we will write the electronic configuration that is based on atomic number. Then based on the last shell, like here it is given 3s2 3p2, the number of the last shell, it will be its period number, as here is the last shell number is 3, so that's why its period number is 3. And now the number of valence electron which are actually representing the group number, here are the valence electron are 2 plus 2, that is 4, that's why its group number is 4. Okay, so similarly like that, in sulfur the valence shell is 3, that's why its period number is become 3, whereas its valence electron is equal to 2 plus 4, that become equal to 6, so that's why its group number equal to 6. Next, fluorine. Fluorine has atomic number 9, so that's why here the given electronic configuration, here is the last shell, that is 2, so that's why its period number is 2. But the number of valence electrons, they are 7, 2 plus 5 equal to 7, so that's why its group number is 7. And at the end, there is an argon given, argon which has atomic number. Argon atomic number? Argon's atomic number is given as 18. 18. And here you have not write its electronic configuration well. यहाँ आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन किस तरह हो रहे हैं मुस्तफा? काउंट करें अगेन. 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p. 1, 2, 3, 4, 10. We need 2 more. Good. Now here become 18, that is its atomic number. So now on the basis of its valence shell, that is 3, that's why its period become 3, and the number of valence electrons 6 plus 2, that is equal to 8, so that's why its group number is 8. So this is the method on which we will provide the group number or period number of any element which is given to us in the periodic table. Okay, Yes. now we have to do our next activity. Now here is our example, that is 4.2, which is written here, classifying or dividing elements into groups and period. Now you have to tell me how can we identify that the element A 1s2 2s2, बताएं जरा अब इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या होगा, और फिर आपको इस तरह राइट भी करना है. सॉल्यूशन उन्होंने वैसे पहले ऑलरेडी गिवन है, चलिए हम खुद लिखेंगे. ठीक है, 1s2 2s2, what is representing? It means its group number is, It means its group number is 6 how can you and its say, period. how can you say that its group number is 6? यहाँ 6 कहाँ से आया है? The first shell can accommodate 2 electrons, the second shell can accommodate 8. तो यहाँ हमारे पास 8 तो है ही नहीं, सेकंड शेल में है ही 2, हमने तो इसकी बेस Yes, पे सिर्फ so ये बताना है. तो आपके पास इसका ग्रुप नंबर भी बेटा 2 है, ये रहा, ये ग्रुप नंबर बता रहा है, और आपके पास इसका पीरियड नंबर भी 2 है, ये आपके पास इसका पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है. लास्ट शेल का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, वो आपको उसका पीरियड नंबर बताता है, और लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो आपको ग्रुप नंबर बताता है. डन? yes.
यस, सो दैट्स वाई यहाँ अब आपके पास ग्रुप नंबर भी 2 है और पीरियड नंबर भी 2 है, आप राइट करते जाएं। अब बी Group बी number two. बी एलिमेंट में जाएं। 1s2, 2s2, 2p3। अब गौर से देखिए और बताएं जरा, पहले तो ये बताएं इसमें वैलेंस शेल कितना है, 1 है कि 2 है, 3 है, 4 है? देखिए जरा ये बी एलिमेंट देखिए, इसमें नंबर ऑफ वैलेंस शेल यस Hmm. Since 1 there is, was above two, so which means in the above there'll be one. sorry, where is 1? I am asking what is its period number and group number? How can you say that on the basis of electronic configuration of B element? A B element, the group number equals to valence, and the valence here is 2 plus 3, 5, 3. Good. Group number 3. Okay. Group number And period 5, group number number is 5, group number 5. I am again and again saying you that total number of electron that becomes equal to group number। अब आपके पास लास्ट शेल जो है वो 2 है और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास 5 है, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। मीन वाइल आपके पास ये एलिमेंट जो है ये ग्रुप नंबर 5 में और पीरियड नंबर 2 में एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गया। ओके, मैं हर वक्त ये मिस्टेक करता था कि मैं आखिरी सेल को देखा था, मैं उसको मैं पूरा आपको, शेल नहीं हाँ देखा था। जी, और मैं आपको ये कल भी बात बता रही हूँ, आज अगेन रिपीट कर रही हूँ बेटा, आपने आखिरी शेल को नहीं देखना। आपने, आप पता क्या देख रहे हैं, आप शेल ही तो नहीं देख रहे, आप सब शेल देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैम आखिरी सब शेल में इतने हैं, S P D F आर द सब शेल। यू हैव टू सी शेल। शेल और सब शेल में पहले डिफरेंस करें, ठीक है? और शेल अब आपके पास आखिरी 2 है, तो मतलब जो शेल है वो आपके पास हो गया पीरियड नंबर, मतलब 2 है तो ऑब्वियसली वो आपके पास पीरियड नंबर में चला गया। लेकिन अब उस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप काउंट करेंगे, क्या आया उसके पास, S सब शेल है, P सब शेल है, D है, F है, जितने भी उसके सब शेल प्रेजेंट हैं, आप उस शेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे सिंपली। वो 2 है, वो 5 है, वो 8 है, वो 10, वो काउंट करने के बाद आप बताएंगे कि ये इसका ग्रुप नंबर है। ओके, सो आपके पास बी वाले में क्या हुआ है बेटा, कि आपके पास देखिए 2 इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में प्रेजेंट थे और 3 इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में प्रेजेंट थे। तो इससे क्या हुआ है कि इसका ग्रुप नंबर इक्वल टू 5 और इसका पीरियड नंबर दैट इज इक्वल टू 2। ओके, यस। नाउ इन द सी एलिमेंट बताएं जरा, वन द एस सी टू टू एस टू एलिमेंट, टू पी फाइव अब 2 है, ये तो हमें पता लग गया पीरियड नंबर इसका 2 होगा क्योंकि इसका वैलेंस शेल ही 2 है। लेकिन अब आप वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन काउंट करें और उससे बताएं इसका ग्रुप नंबर क्या होगा। 7। वेरी गुड, अब पता चला, इट्स इसका ग्रुप नंबर आपके पास 7 होगा बिकॉज 2 प्लस 5 दैट बिकम इक्वल टू 7। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट डी एलिमेंट। It will be in period number 3 and group number 2. वेरी गुड, ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट ई वाला पार्ट जो है, ई एलिमेंट। Group number 7 and period number 3. वेरी गुड, नाउ एफ पार्ट Group number 5 and period 3. and period 3। So that's it, that is your, how can we identify group number or period number related to electronic configuration। Okay, here is problem solving strategy में क्या write किया हुआ है, the elements whose element have similar valence electronic configuration they should be put in the same group, the n value of the valence shall indicate period, अभी मैंने बताया, और element whose atom the same value of n sub shell that is called its period। right, ये वाली 3 जो इसके problem solving strategy हैं ये पढ़ें जरा, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या रूल डिस्कस किए हैं, Element वही whose रूल इधर लिखे atoms हैं। have similar valence shell according The elements whose atoms have similar valence shell electronic configuration belong to the same group. The n value of the valence shell indicates period. The elements whose atoms have same value for n other valence shells shall lie in the same period. Yes,
सो हियर इज सॉल्यूशन। अब जो हमने ऊपर फाइंड किया, देखिए उन्होंने उसको पुट किया periodic टेबल में। हमने जैसे फर्स्ट वाले में कहा कि ये टू ही ग्रुप है और टू ही पीरियड है, ऐसे ही था फर्स्ट वाले में, ए में। तो उन्होंने Yes. ए को देखिए कहाँ प्लेस किया है, इस प्लेस पे। ये जरा देखें इधर, जिसको मैंने हाईलाइट किया। अब ये वाली जगह में प्लेस करने का क्या मतलब है, क्योंकि देखिए ये टू ही ग्रुप था, ये देखिए टू ए ग्रुप, और ये टू ही पीरियड था। पता लग रहा है ना। Yes. तो इन्होंने क्या किया, टू पीरियड टू ग्रुप में ए एलिमेंट को लाके रिप्लेस कर दिया। अब बी को देखें, टू पीरियड बट इन फाइव ग्रुप, ऐसे ही था। तो देखिए टू के टू पीरियड में ही रखा है, लेकिन फाइव ग्रुप ऊपर इन्होंने मेंशन कर दिया। तो ये इसकी जगह पे इन्होंने बी को Yes. रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट सी में क्या था, आपके पास टू पीरियड ही था, बट आपके पास ग्रुप नंबर क्या था, सेवन, सेवन ए। तो इन्होंने इधर सेवन ए लिख के यहाँ आपके पास सी को रिप्लेस कर दिया। अब ये क्या करें, ए बी सी तीनों एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे थे जो कि पीरियड टू में थे। ये देखिए यहाँ भी हमें पीरियड टू ही नजर आ रहा है, ऐसे ही है, बट इनके ग्रुप नंबर चेंज थे। तो वो ग्रुप नंबर चेंज उन्होंने ऊपर लिख के इनको इनकी प्लेसमेंट की है, इनको जगह दी है। अंडरस्टैंड दैट। Yes. नाउ फॉर डी एफ और ई, इनमें क्या था कि हमारे पास पीरियड नंबर थ्री था, तो इसलिए हमने डी एफ और ई को देखें पीरियड थ्री में रिप्लेस किया है। लेकिन इनके भी ग्रुप नंबर आपके पास क्या थे, टू फाइव सिक्स थे, तो उस लिहाज से हमने इनको रिप्लेसमेंट किया है। ठीक है। तो अब आपके पास अपना periodic टेबल जरा ओपन करें, और हम इसकी थोड़ी छोटी सी एक एक्टिविटी करते हैं कि हेयर आई हैव ओपन योर periodic टेबल। अब periodic टेबल को देखें और जरा आप मुझे बताएंगे कि बेटा इसमें आपके पास फॉस्फोरस है, यहाँ नजर आ रहा है, ये रहा फॉस्फोरस। Yes. आप मुझे जरा इसको देख के बताएं। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं बताना, आपने इसकी लोकेशन पे बताना है मुझे कि व्हाट इज इट्स पीरियड नंबर एंड व्हाट इज इट्स ग्रुप नंबर। Okay. Phosphorus is present in period number 3 गुड, and it's present in group number 6. वेरी गुड। फॉस्फोरस का ग्रुप नंबर अगेन देखें जरा। Phosphorus is group number again. So group number 6 and period number 3. नो, ग्रुप नंबर सिक्स, हाउ कैन यू से दैट ग्रुप नंबर इज सिक्स, काइंडली। Group number 16. नो, VI. आई थिंक सो आपको ना ये पिक्चर ब्लर है, तो इसलिए भी आपकी मिस्टेक ज्यादा हो रही है। आप दूसरा पैडिक टेबल क्यों Okay, नहीं I'm ओपन looking at the करते। other periodic table. Okay, I open the second periodic या table. It's 15, 15, 15, 15. 15 नहीं, आप ए में बताएं, मेन ग्रुप एलिमेंट में बताएं। इट्स फोर फाइव सिक्स, इसमें से बताएं, ऑप्शन दे रही हूँ आपको। 5. आप पता चला आपका वो पैडिक टेबल आपके पास बुक में ब्लर है, जिसकी वजह से आप बेटा मिस्टेक कर रहे हैं। तो अब आप अपना काइंड, जब भी मैं आपको पैडिक टेबल ओपन करने का कहूंगी, तो आप ये वाला पैडिक टेबल ओपन करेंगे, जो कि आपके पास पेज नंबर 50 पे है। 48 पर है. 50, अच्छा हाँ, आपके उधर मैं आप मेरे पास बुक में 50 पेज नंबर पे गिवन है। ओके, ठीक है। Okay, तो I think आपको the ये, credits are missing from my book. या Okay, anyway, let's move on. नाउ अब पोटेशियम का बताएं जरा। अब ये, Potassium. हाँ जी, Potassium. के, ये आपके पास, Potassium. ये मैं आपको बता रही Group. हूँ, हाईलाइटिंग कर दिया मैंने पोटेशियम। Yes, it's in group number 1 and in period number 1 to 4. वेरी गुड। एक और मुझे जरा बताएं, आप बताएंगे मुझे कॉपर का। Copper. Copper, 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 copper. इट इज It's इन present in the ट्रांजिशन metal oil. एलिमेंट, या मेटल ऑयल। टेल मी इट्स पीरियड नंबर प्लीज। Okay, copper. It's in period number 1, 4 ओके, and group number 11. वेरी गुड। ओके, एक और मुझे बताएंगे जरा आप क्रिप्टॉन का। Krypton.
I have highlighted on your screen. Kindly see that. Here is Krypton. KR. Okay, Krypton. Krypton is present in period number 4 Okay. also, Okay. and present in group number VIIA or group number 18, and Good. it is a noble gas. वेरी गुड. अब आपको कल हमने ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए मेथड जो पढ़ा था वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, और आज जो हमने पढ़ा है वो थ्रू इट्स लोकेशन है, कि periodic टेबल में हमारे पास वो एलिमेंट किस लोकेशन पे है, उसके अकॉर्डिंग हमने जस्ट पीरियड और ग्रुप को काउंट करना है और बता देना है. अब आप मुझे बताएंगे, आपको ये दोनों मेथड आ गए हैं, आप इजीली Yes, पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. विच वन मेथड इज इजी फॉर यू? the electronic configuration one is much easier just because it's all you have to do is write the electronic configuration. Sometimes it's better to do this one, which is the look at the group number and period number, but it's less impractical when you're looking at questions and papers. Okay. Here you want concept assessment exercise 3.1. Kindly open that. Page number 15. Yes, And now open. what we have to do here, electronic configuration of atom of some elements are given below. Place them into groups and period. अब ये हमारा बहुत मजे का काम है और ये अब आपको करना है. P एलिमेंट देखें जरा, 1s2 2s2 2p2. अब बताएं जरा पहले इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या है, और फिर नीचे जो आपको एक स्केच डायग्राम है, यहां आप मुझे बताएंगे कि मैम इस एलिमेंट की प्लेस कहाँ होगी. Okay. ये बहुत इंटरेस्टिंग Group. सी आपकी एक्टिविटी है, सो इसको आपने अच्छे से करना है. ओके. It's in group number 4 and period number 2. The element is in group number 4 and period number 2. ओके, लेट मी ओपन प्लीज. या, Group equals to valence and period equals to options. वेयर इज गिवन द, यस, बताएं जरा पी एलिमेंट को कहाँ रिप्लेस करेंगे हम. In group number 4, 1, 2, 3, and period number 2. It should be placed here. Element P is ono. Right ओके. there. 1s2 2s2 Yeah, 2 एक मिनट, 1s2 2s2 2p2, मतलब इसका पीरियड नंबर 2 ही होगा और ग्रुप नंबर होगा इसका 4. 4. ओके, अब आप मुझे बताएं जरा आप इधर कहाँ रिप्लेस करना चाह रहे हैं. हम्म, Please come on a second. Either. Yeah, P. Yeah, my handwriting is terrible. This is P here. Right here. P. no, There. no, never. Kindly count It's again. blur. Wait. It's Sorry. period. Yeah, Here. no, 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 Group no. number equals to valence. It's in group number 4. Group number 4 and period number 2. हाँ Group जी, number तो 4 is आप here ग्रुप and नंबर period number 3 2 में is कहाँ से here. बना. हाँ जी, ग्रुप नंबर 4 Here. पीरियड नंबर 2, आपके पास पी इधर आएगा बेटा, हियर. Yes, but you're continuously moving the screen. I cannot put it at the correct place. ये आपके पास यहाँ लोकेशन आएगा. ऑफ पी है, There. यहाँ. समझ आई. आपने अभी भी नीचे गलत लिखा है, आपको नहीं समझ आ रही कि आपने कैसे प्लेसमेंट करनी है. मैंने प्लेसमेंट सही से किए लेकिन
Screen हिल रहा है और when we move the screen, all the elements also come down with it. I put it at the correct place, but it moved and now it's on the ओके other side of the ओके, screen. अभी आप जी एलिमेंट देखें जरा ऊपर, 1s2 2s2 2p1, अंडरस्टैंड दैट। अब इसको Valence, प्लेस करें। valence, अब मैं आप कोई valence is स्क्रीन 3. ऊपर नीचे नहीं करूंगी, आप प्लेस करेंगे। बताएं जरा पहले Okay. जी में पीरियड नंबर क्या है और इसका। Group number is 3 and period number is 2. Group number 3, which is here. Group number 3, which is here. 3 and period number 2. हम्म, Right here. वेरी गुड। अब वाई बताएं। Y. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3p. It's इट्स saying पीरियड नंबर इज group 3, ग्रुप नंबर group number is 8 and period number is 3. Group राइट number करें। is 8. 1, 2, 3, 4, 5,